Good morning, students. I'm Manoj Kumar Sharma. I'm your chemistry mentor. Students, I welcome you all in Har Ghar Pathshala. Students, our today's topic is aldehydes, ketones, and carboxylic acid of class 12th. It's lecture 2nd, part 1st. Students, if you will have any query beta, you can mail me at my email ID beta, that is echemistryonline@gmail.com, and my WhatsApp number is 9418605442. And today's subtopics are structure of the carbonyl group, then we'll discuss the preparation of aldehydes and ketones. So students, let's start our today's topic with the structure of carbonyl group. बच्चों, ये कार्बन एटम है कार्बोनाइल ग्रुप का, डबल बॉन्ड O, and this carbon is further having two other bonds beta, and this oxygen is having your two lone pair of the electrons. So this is a carbonyl group. If you see beta, this carbon, ये जो कार्बन है बेटा, इसके साथ 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है बेटा. तो जबकि जो यहां आपके 3 जो सिग्मा बॉन्ड है बेटा, तो इट मींस इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन की, दैट इज sp2. नाउ इट्स हाइब्रिडाइजेशन इज sp2. So since the carbonyl carbon atom is sp2 hybridized and forms the 3 sigma bonds. And since जो आपका 4th इलेक्ट्रॉन है बेटा इस कार्बन एटम का, वो कहां रहेगा आपका बेटा? दैट विल रिमेन इन इट्स p ऑर्बिटल. इज दैट क्लियर? एंड दैट विल फॉर्म दिस पाई बॉन्ड बेटा. इज दैट क्लियर? बाय द साइडवाइज ओवरलैपिंग ऑफ द p ऑर्बिटल ऑफ योर दिस ऑक्सीजन बेटा, विच इज ऑल्सो हैविंग योर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसके साथ वो साइडवाइज ओवरलैपिंग करेगा, जो अभी हम डिस्कस करेंगे बेटा. Now just see here, this is this carbon beta. Now this carbon is having this carbon is bonding with this oxygen beta here, and this carbon is having your 2 other sigma bonds beta. Now this carbon, as I have told you, is sp2 hybridized, क्योंकि यहां 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं बेटा, ये सिग्मा बॉन्ड्स हैं तीनों. अब कार्बन के बैलेंस शेल में जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो कितने होते हैं बेटा? दे आर योर 4. सो इट मींस देयर इज 1 इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन द वन ऑफ द p ऑर्बिटल ऑफ योर दिस कार्बन, और वो p ऑर्बिटल क्या है बेटा? अनहाइब्रिडाइज्ड है. दैट p ऑर्बिटल इज अनहाइब्रिडाइज्ड एंड दैट इज हैविंग योर 1 इलेक्ट्रॉन. बट बिफोर गोइंग दैट बेटा, ये जो ऑक्सीजन है, दिस इज हैविंग योर 1 लोन पेयर एंड देयर इज अनदर लोन पेयर बेटा. तो इट मींस इस ऑक्सीजन के साथ आपके 2 लोन पेयर हैं. तो ऑक्सीजन के यहां कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा? 1 2 3 4 एंड 1 इज योर 5. तो इट मींस 1 इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो देयर विच इज लेफ्ट ओवर हियर ऑफ दिस ऑक्सीजन बेटा, और वो कहां है? इसी के p ऑर्बिटल में है बेटा. सो लेट्स सी. अब ये कार्बन है, दिस इज p ऑर्बिटल ऑफ दिस कार्बन बेटा, विच इज हैविंग योर 1 इलेक्ट्रॉन, and this oxygen is also having your 1 p orbital which is also having your 1 electron. So ये जो आपके बेटा p orbitals हैं of this oxygen and this hydrogen, they will undergo the sidewise overlapping. ये क्या करेंगे? sidewise overlap करेंगे बेटा, और ये क्या बना देंगे? आपके pi bond. So since जो आपका sidewise overlapping से जो आपका bond बनेगा, that is your this pi bond बेटा. जो यहाँ pi bond है, that is formed as a result of sidewise overlapping of your these orbitals beta of this carbon and that of your this oxygen. Now बच्चों, ये जो आपका pi bond बना यहां, is that clear? This is having your electron density above the plane and that of your below the plane of your this sigma bond beta. Is that clear? So this pi bond is getting formed by the sidewise overlapping of the p orbital of this carbon and that of your this oxygen. So beta, ये जो आपके 2 लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको हम क्या कहते हैं? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स. क्या कहेंगे हम इनको? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स. सो बेटा, जस्ट सी व्हाट हैव रिटन ओवर हियर, व्हाटएवर वी हैव डिस्कस्ड.
So the oxygen atom also has two non-bonding electron pairs that I have told you. The carbonyl carbon and the three atoms attached to it lie in the same plane. बेटा ये जो आपका कार्बन और ऑक्सीजन एटम है या फिर दो और एटम है जो यहां होगा और इसके साथ होगा बेटा, ये क्या हैं? तीनों ही जो आपके एटम्स हैं which are attached with your this central carbon atom बेटा, they are all in a plane बेटा. और ये जो आपका पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है बेटा, दैट इज अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन. होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर. नाउ बेटा ये जो आपके बॉन्ड एंगल्स रहेंगे आपके इस सिग्मा बॉन्ड और इस सिग्मा बॉन्ड के बीच में, इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में, दे आर अप्रोक्सीमेटली 120 डिग्री बेटा. तो मीन्स जो भी आपका बॉन्ड रहेगा यहां बेटा, दैट इज योर 120 डिग्री अप्रोक्सीमेटली. इज देयर क्लियर? और स्ट्रक्चर कैसा है इसका बेटा? ट्रायगोनल प्लानर स्ट्रक्चर इज देयर. सो होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर. नाउ ऑर्बिटल डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ योर कार्बोनाइल ग्रुप. यह भी जो हमने डिस्कस किया बेटा, इसको मैंने यहां समराइज करने की कोशिश की है. अभी हमने डिस्कस किया था बेटा यहां कि कार्बन इज योर sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड दिस कार्बन एंड दिस ऑक्सीजन इज हैविंग योर p ऑर्बिटल्स which are parallel to each other and they are having your each are having your one electron beta and they will undergo the sidewise overlapping, जिसकी वजह से आपके यहां क्या बन गया? आपके पाई बॉन्ड बन गया बेटा. एंड दिस पाई बॉन्ड जो बना बेटा, इसमें जो आपकी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दैट इज अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन. इज देयर क्लियर? और आपका ये क्या दे रहा है आपको? ट्रायगोनल प्लानर स्ट्रक्चर दे रहा है बेटा. एंड मीन्स all the three atoms attached to this carbon beta, one is this one is here, one is here, they are all in a plane. Is that clear? And the bond angle here between these beta, they are, that is of 120 degree. Is that clear? Hope students this is clear. So beta, now this is carbonyl group beta. Now this carbonyl group is somewhat polar in nature. क्यों बेटा? Because of the electron difference between the carbon and oxygen. ऑलवेज रिमेंबर बेटा, ये जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा रहेगा उतनी ही ज्यादा आपका पोलर कैरेक्टर रहेगा आपका बॉन्ड का. सो मींस अब आपका जो ऑक्सीजन है दैट इज समवट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू दैट ऑफ योर दिस कार्बन बेटा. सो दिस इलेक्ट्रॉन पेयर इज देयर क्लियर? दैट विल बी मोर डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स योर दिस ऑक्सीजन एटम बेटा. सो दिस pi electron density is more shifted towards your this oxygen atom. It means is that clear? That's why this oxygen being more electronegative beta, that is acquiring your partial negative charge, and this carbon is acquiring your partial positive charge. So we can say this is having a somewhat polar character beta, and due to this polar character that is having some dipole moment. Is that clear? See just here, the carbon oxygen double bond is polarized. और किस तरह polarized है बेटा? Due to the higher electronegativity of the oxygen relative to the carbon. और बेटा ये जो आपका कार्बन है दैट इज हैविंग योर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. सो हम यहां कह सकते हैं कि ये जो कार्बन है दैट इज समवट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, जिसको हम क्या कह सकते हैं? लुईस एसिड. इज दैट क्लियर? एंड देन दिस ऑक्सीजन इज हैविंग योर पार्शियल नेगेटिव चार्ज. सो वी कैन से दिस इज समवट योर यू कैन से न्यूक्लियोफिलिक सेंटर एंड दैट मे बी योर लुईस बेस. होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर. नाउ बेटा ये जो आपका अभी मैंने कहा ये जो कार्बन है बेटा, कार्बोनाइल ग्रुप का, दैट इज समवट इलेक्ट्रोफिलिक. इज दैट क्लियर? और दैट इज लुईस एसिड एंड द ऑक्सीजन ऑफ दिस कार्बोनाइल ग्रुप दैट इज सेड टू बी योर कार्बोनाइल ऑक्सीजन बेटा, दैट इज अ न्यूक्लियोफिलिक सेंटर और यू कैन से दैट इज अ लुईस बेस. सो ये जो आपका कार्बोनाइल कंपाउंड्स है बेटा, as I've told you, that is somewhat polar in nature. So it means if that is having some polarity beta, it means that is having some dipole moment. Is that clear? अगर वो dipole moment है, that's why they are your polar in nature. Is that clear? और यहां क्या है बेटा? ईथर से कंपेयर किया है. सो आई मस्ट से बेटा कि ये ईथर से ज्यादा पोलर कैरेक्टर रहेगा आपका कार्बोनाइल ग्रुप का. और ये जो हाई पोलैरिटी है कार्बोनाइल ग्रुप की, वो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बेटा ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस विच इज इन्वॉल्व हियर, जो अभी हमने स्ट्रक्चर बनाया भी था पहले इन केस ऑफ योर न्यूट्रल और यू कैन से डाइपोलर स्ट्रक्चर के केस में. जैसे मान लिया दिस इज अ कार्बोनाइल ग्रुप बेटा एंड इट्स डाइपोलर स्ट्रक्चर इज दिस वन. इज डाइपोलर मींस डाई मींस टू पोल्स, मींस दीज टू पोल्स नेगेटिव एंड
पॉजिटिव। इज देख क्लियर? अभी मैंने क्या कहा था कि ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन का क्यों हुआ बेटा, पार्शियल नेगेटिव क्यों हुआ? बिकॉज इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इज देख क्लियर? सो ड्यू टू this carbonyl group is having your high polarity beta. So hope this is clear. And यहां एक बात कहना चाहूंगा बेटा, जब भी दो एटम्स के बीच में जब बॉन्ड बन रहा है एंड इफ दे आर हैविंग सम इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, और ये जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा उतनी ही ज्यादा पोलर कैरेक्टर रहेगा और उतना ज्यादा आपका डायपोल मोमेंट रहेगा बॉन्ड का। होप दिस इज क्लियर। Now, since preparation of aldehydes and ketones, since we can prepare aldehydes and ketones by the oxidation of the alcohols, और अल्कोहल की जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे बेटा तो हमें कंट्रोल्ड वे पे इसकी ऑक्सीडेशन करनी पड़ेगी ताकि हमें एल्डिहाइड और कीटोन ही मिले। अदरवाइज एल्डिहाइड्स और कीटोन्स विल फर्दर बी ऑक्सीडाइज्ड टू योर कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और एक चीज हमेशा याद रखें बेटा, प्राइमरी अल्कोहल्स अपॉन ऑक्सीडेशन आपको एल्डिहाइड्स देंगे और सेकेंडरी अल्कोहल्स आपको कीटोन्स देंगे अपॉन कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन बेटा। और ये ऑक्सीडेशन कौन करेंगे बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, और कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैव गिवन ओवर हियर। पहला जो है आपका बेटा दैट इज एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, aqueous or alkaline KMnO4 beta, and then chromic anhydride, or that is a chromium oxide in sulfuric acid beta. So these are some common oxidizing agents beta which we will use here just for the oxidation of the alcohols to get the aldehydes and ketones. So beta यहां आप देखें कि आपका ये जो अल्कोहल है दैट इज प्राइमरी अल्कोहल एंड अपॉन ऑक्सीडेशन, और ये ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है बेटा? पोटेशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ सम एसिड, सो दैट इज एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट बेटा। और ये हमें क्या दे रहा है? एल्डिहाइड दे रहा है और वाटर इट इज गोइंग टू लूज बेटा। सो दिस इज ऑक्सीडेशन। यू नो बेटा व्हाट इज हैपनिंग हियर, एक हाइड्रोजन आपका ये वाला जा रहा है बेटा और एक हाइड्रोजन इस कार्बन का जा रहा है बेटा। सो वी आर लेफ्ट हियर विद दिस RCHO। Now here this is another alcohol बेटा, एक हाइड्रोजन यहां से लूज करेगा बेटा, एक यहां से जाएगा हाइड्रोजन, तो क्या बच गया आपका HCHO। सो दिस सो मेथेनॉल इस देख लो, तो मेथेनॉल जो है आपको मेथेनॉल दे रहा है और बाय प्रोडक्ट आपको वाटर मिल रहा है। और ये कौन कर रहा है ऑक्सीडेशन बेटा? अगेन पोटेशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। सो दिस इथेनॉल बेटा, इथेनॉल अपॉन ऑक्सीडेशन इज गिविंग यू इथेनॉल। इस देख ले सेम रिएक्शंस हैं बेटा ये। Now this is some alcohol beta, aromatic alcohol is there, this is benzyl alcohol rather, is that clear? Which will give upon oxidation beta, that will give us एक हाइड्रोजन यहां से जाएगा बेटा, एक हाइड्रोजन यहां से जाएगा, तो हमारे पास यहां क्या बच गया? CHO। So that is your बेंजीन के साथ CHO बेटा, that is your benzaldehyde, that is your benzaldehyde plus water. Is that clear? So means here you just see all these are your primary alcohols beta and they are giving you the aldehydes upon oxidation, और oxidation कौन कर रहा है बेटा? पोटेशियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम। नाउ बेटा दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल की जब हम ऑक्सीडेशन करें तो एक हाइड्रोजन ये जाएगा बेटा, एक हाइड्रोजन यहां जाएगा और इन दो के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा बेटा। सो दैट विल बी योर ऑक्सीडेशन। सो दैट इज ऑक्सीडेशन कौन करेगा? पोटेशियम डाइक्रोमेट अगेन बेटा इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एसिड बेटा। सो इट इज गोइंग टू गिव यू दिस कीटोन बेटा प्लस वाटर। सो नेक्स्ट बेटा दिस इज ऑल्सो सम अल्कोहल बेटा, दैट इज अगेन सेकेंडरी अल्कोहल, क्योंकि जिस कार्बन के साथ ये OH ग्रुप लगा है बेटा दैट इज फर्दर अटैच टू योर 2 कार्बन एटम बेटा। सो दैट इज योर सेकेंडरी, सो दैट इज योर सेकेंडरी अल्कोहल बेटा। क्लियर? सो अपॉन ऑक्सीडेशन क्या देगा ये बेटा? फिर से इन द प्रेजेंस ऑफ दिस पोटेशियम डाइक्रोमेट, सो ये एक H यहां से जाएगा, एक H यहां से जाएगा बेटा। दिस कार्बन इज ऑल्सो हैविंग योर 1 हाइड्रोजन एटम बेटा। इज दैट क्लियर? सो क्योंकि इस कार्बन के कितने बॉन्ड बन रहे हैं यहां? 1 2 3। इज दैट क्लियर? सो बैलेंस इज नॉट सेटिस्फाइड, सो दैट इज हैविंग योर 1 हाइड्रोजन ओवर हियर, दैट इज नॉट रिटन बेटा।
सो दैट्स व्हाई दैट इज गोइंग टू गिव अस, एक हाइड्रोजन यहां से गया बेटा, एक हाइड्रोजन यहां से गया, और ये हमें क्या दे रहा है, दैट इज अगेन गिविंग अस कीटोन बेटा. इज दैट क्लियर? दिस इज साइक्लोहेक्सेनोन बेटा, दिस इज साइक्लोहेक्सेनोन, और आपको वाटर एक बाय प्रोडक्ट दे देगा. सो बेटा एल्डिहाइड जो है फॉर्म्ड इन द ऑल दीज प्रोसेसेस बेटा, इज दैट क्लियर, दैट इज रेडली ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड. क्यों? क्योंकि ये जो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इज दैट क्लियर? अगर ये एल्डिहाइड और कीटोन यहां से रिमूव नहीं किए गए बेटा रिएक्शन मिक्सचर से, सो दिस विल रेडली बी ऑक्सीडाइज टू योर कार्बोक्सिलिक एसिड. ये आपको एकदम आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा, क्योंकि ये आपका जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है दैट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर. और हम जब बेटा इसको रेडली ऑक्सीडाइज होने से कैसे बचा पाएंगे? अब अगर आप देखें, अगर ये अल्कोहल है, अल्कोहल में क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज देयर, और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा बेटा, एज कंपेयर टू दैट ऑफ योर द कीटोन्स और एल्डिहाइड्स बेटा, दैट विल बी मोर. सो जैसे ही आपका एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं बेटा, डिस्टिल ऑफ कर सकते हैं. इज दैट क्लियर? सो एज सुन एज दिस इज गेटिंग फॉर्म्ड ओवर हियर, चाहे एल्डिहाइड है और या कीटोन है बेटा, वी कैन डिस्टिल इट ऑफ. इज दैट क्लियर? वी हैव टू डिस्टिल इट सो दैट इट शुड नॉट बी ऑक्सीडाइज फर्दर. क्लियर? सो लेट्स सी हाउ इट इज देयर बेटा. जैसे सपोज बेटा दिस अल्कोहल हियर, 1 2 3 4, दिस ब्यूटेनॉल बेटा, इट इज अपॉन ऑक्सीडेशन इज गिविंग यू दिस ब्यूटेनॉल. सो बेटा इसका अगर बॉइलिंग पॉइंट देखें आप, दैट इज 391 केल्विन. इज दैट क्लियर? और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा इसके कंपैरिजन में, और वो कितना है बेटा, 349 केल्विन. अभी मैंने क्या कहा कि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है, बिकॉज ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. और ये आपके इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ एल्डिहाइड के केस में नहीं है बेटा, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा आपका, कम रहेगा बेटा. सो अब इसका लो बॉइलिंग पॉइंट होने की वजह से इसको हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डिस्टिल इट. इज दैट क्लियर? सो एल्डिहाइड्स कैन बी डिस्टिल्ड ऑफ बेटा as soon as they are formed, so as to prevent its further oxidation. क्यों? क्योंकि आपका ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है दैट इज अ स्ट्रॉन्ग. So this way we can prevent the further oxidation of the aldehydes to the carboxylic acid. Hope students this is clear. So since अभी हमने एक reagent की बात की, is that clear? There are some other reagents also and they behave differently. Is that clear? अब जो आपके बेटा दूसरे रिएजेंट्स हैं जिनको हम यूज करते हैं बेटा, सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन ऑफ द प्राइमरी अल्कोहल्स टू द एल्डिहाइड्स. और वो कौन कौन से हैं बेटा, एक ध्यान रखें एक बात का, आपका बोर्ड एग्जाम में कोई नहीं पूछने वाला इनको, इन रिएजेंट्स को, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू. सो दैट्स व्हाई आई हैव डिस्कस्ड दिस ओवर हियर. सो दिस इज सैरेट रिएजेंट बेटा. Serrate reagent is nothing but it is the complex of your chromium trioxide बेटा. CrO3 का complex है किसके साथ, ये pyridine के साथ, that is CrO3 C5H5N. Is that clear? And that is in ratio 1:2 in pyridine बेटा. That is a serrate reagent. Students always remember ये जो आपका pyridine है, it is very difficult to separate the product from the pyridine. Is that clear? So this is the disadvantage of your this serrate reagent बेटा, क्योंकि प्रोडक्ट जो बनेगा उसको pyridine से सेपरेट करना एक टफ जॉब रहेगी. सो नेक्स्ट जो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा, दैट इज कॉलिन्स रिएजेंट. अगेन बेटा ये भी क्या है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और pyridine का ही कंप्लेक्स है, दैट इज इन रेशियो 1:2 अगेन. इज दैट क्लियर? लेकिन यहां डिफरेंस क्या है बेटा, pyridine और सॉल्वेंट यहां क्या है आपका, that is CH2Cl2 beta. Is that clear? Instead of your pyridine. So that is the difference between choline and serrate beta. Then next is a Core's reagent, or you can say PCC, that is a pyridinium chlorochromate. और बेटा ये भी कंप्लेक्स है आपका क्रोमियम ट्राइऑक्साइड का और pyridine का बेटा एंड HCl का, and that's why it is a pyridinium chlorochromate. Is that clear? Pyridinium means N के ऊपर जो आपका लोन पेयर है बेटा, this will accept you this proton of this cell, that's why pyridine से pyridinium बेटा chlorochromate. Is that clear? That is a C5H5NH positive, CrO3Cl negative, and that is in ratio 1:1 beta.
एंड देन नेक्स्ट जो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा, दैट इज pyridinium dichromate, that is of PDC. पहला PCC था, pyridinium chlorochromate बेटा, then this is of pyridinium dichromate बेटा, that is of PDC, and that is of C5H5 NH positive whole twice बेटा Cr2 O7 2 negative. ये जो सारे के सारे बेटा अभी जो भी हमने रिएजेंट डिस्कस किए बेटा, दे आर यूज्ड जस्ट टू ऑक्सीडाइज द प्राइमरी अल्कोहल टू द एल्डिहाइड्स और सेकेंडरी अल्कोहल्स टू द कीटोन्स और अंडर माइल्ड कंडीशंस बेटा. नाउ बेटा नेक्स्ट इज योर जोन्स रिएजेंट. बेटा ये जो जोन्स रिएजेंट है ये सॉल्यूशन है किसका बेटा, CrO3 का इन H2SO4. इज दे क्लियर? इन एक्वस एसीटोन. और बेटा ऑलवेज रिमेंबर इन स्मॉल क्वांटिटी इट कैन ऑक्सीडाइज द प्राइमरी अल्कोहल्स टू द एल्डिहाइड्स. प्राइमरी अल्कोहल्स को ये एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट कर सकता है बेटा, बट इन एक्सेस बेटा इट विल ऑक्सीडाइज द एल्डिहाइड्स फर्दर. अगर हम इसको एक्सेस में लेंगे बेटा, स्मॉल क्वांटिटी में क्या, अभी मैंने क्या कहा कि इन स्मॉल क्वांटिटी बेटा इट कैन ऑक्सीडाइज प्राइमरी अल्कोहल टू द एल्डिहाइड, बट इन एक्सेस it will oxidize it further to the carboxylic acid. So this precaution you have to take over here. So बेटा और दूसरी बात इस जोन्स रिएजेंट में क्या है बेटा कि इट इज वेरी सिलेक्टिव. सिलेक्टिव कैसे बेटा कि आपका अगर डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है आपका रिएक्टेंट में तो दैट विल नॉट बी अटैक्ड, मींस उसकी ऑक्सीडेशन नहीं होगी बेटा. सो these are used just to oxidize the allylic and your benzylic primary and secondary alcohol. जो आपके allylic और benzylic primary alcohols या फिर secondary alcohols रहते हैं बेटा, उनको हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं यूजिंग योर दिस रिएजेंट, सो दैट जो आपके यू कैन से डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स हैं बेटा वो क्या है, उनकी ऑक्सीडेशन ना हो. नेक्स्ट इज द एग्जांपल बेटा हियर आई हैव टेकन. सो दैट इज Jones reagent है, this is a chromium oxide beta in sulfuric acid that and your this aqueous acetone beta, this allylic alcohol beta, this is a allylic alcohol here that is CH2 double bond CH CH2OH beta, that is going to give you this acrolein, that is a CH2 double bond CH CHO beta. Is that clear? Using your this Jones reagent. Okay beta, now जो आपकी डिसएडवांटेज है, ये जो भी हमने रिएजेंट्स अभी डिस्कस किए बेटा ओवर द पोटेशियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम बेटा, वो ये है कि बेटा जो ऑक्सीडेशन है वो एल्डिहाइडिक और कीटोनिक स्टेज पे ही आपकी रुक जाती है और फर्दर ऑक्सीडेशन आपकी नहीं रहती एल्डिहाइड्स की आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में. सो दैट इज द डिसएडवांटेज व्हेन वी हैव टू प्रिपेयर द कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा. बट दिस इज द एडवांटेज व्हेन वी हैव टू प्रिपेयर योर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बिकॉज दीज आर ऑल your mild oxidizing agents beta. Now this is of some primary alcohol over here. जब हम इसकी ऑक्सीडेशन कर रहे हैं बेटा using your this Collins reagent, तो that will give you this aldehyde, that is of RCHO. Further बेटा ये जो आपके reagents है they do not attack the double bond and remain unaffected during the oxidation. जैसे पहले मैंने क्या कहा कि ये जो आपके जो भी reagents है बेटा they are mild oxidizing agents and they will not affect, they will not attack the double bond or triple bonds and they will remain unaffected during the reaction. So beta now this is this is again your allylic alcohol beta. So here in the presence of this PCC, pyridinium chlorochromate, or you can say Collins reagent beta, ये क्या दे रहा है, this alcohol is getting oxidized to your some ketone beta. So beta thank you, have a nice day. Hope you have enjoyed. So subscribe my channel, like my channel, share my channel and keep enjoying studies with me. Thank you.